Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes. And in today's class we are going to talk about one of the very important topics. Slides कम है इसकी तीसरा वीडियो है employment chapter का. Why is there difference between worker population ratio in rural and urban area? तो जो worker population ratio है उसमें difference क्यों है? So in the last video, we had discussed something related to this particular table about worker population ratio. आप देख सकते हैं जो total percentage है rural area में it is 35%, whereas in urban area it is 33.9%. तो 35% जो है वो rural area में है worker population ratio, जबकि urban area में this is 33.9%. तो ये total पॉपुलेशन का एक तरीके से परसेंटेज है कि भाई हमारी टोटल परसेंटेज अगर 100 है तो 100 लोगों में से 35 लोग जो हैं वो रूरल एरिया में काम करते हैं, जबकि ऑलमोस्ट 34% जो है वो अर्बन एरिया में काम करते हैं. बाकी अनएम्प्लॉयड हैं, बाकी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का पार्ट नहीं है, छोटे बच्चे हैं या फिर एजेड लोग हैं. तो व्हाई दिस डिफरेंस इज देयर? ये अर्बन एरिया में 34% है अराउंड, जबकि रूरल एरिया में 35% है. तो ऐसा क्यों है? वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर. So in urban areas, the worker population ratio is about 33.9%, यानी कि around 34% है, whereas in rural area the ratio is about 35%. So वैसे आपको परसेंटेज में सिर्फ 1.1 का डिफरेंस नजर आ रहा होगा, बट अगर हम बात करें टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा है. So people in rural areas have limited resources. उनके पास इतने ज्यादा resources नहीं होते हैं to earn a higher income and participate more in employment market. तो ना तो उनके पास इतने ज्यादा resources होते हैं, ना उनकी इनकम इतनी ज्यादा होती है, so that and they participate more in employment market. तो इसलिए employment market में बहुत ज्यादा participate करते हैं, ज्यादा employment की जरूरत होती है. On the contrary, अच्छा इन्हीं में से ऐसा होता है रूरल एरिया में, many of the people are there, many students are there, many adults are there, they do not go to schools, colleges and other training institutions. तो वो यहाँ नहीं जाते हैं. So even if some go, they discontinue in the middle to join the workforce, or because of family conditions, because of their economic conditions, they discontinue their study and they join the workforce, और workforce का part बन जाते हैं. So people cannot stay at home as their economic condition. तो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर यही है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है उनको अलाउ नहीं करती है, may not allow them to do so. तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो कॉलेजेस जाएं, स्कूल्स वगैरह जाएं या अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर पाएं. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट दे पार्टिसिपेट मोर इन एम्प्लॉयमेंट मार्केट. और इसीलिए अल्टीमेटली उनको काम करना पड़ता है कंपल्जन की वजह से. And that is why the workforce ratio in worker या फिर worker population ratio या worker participation rate is more in rural area. Whereas अगर हम बात करें urban area की, तो urban area में क्या होता है? On the other hand, दूसरी तरफ अगर हम देखें, in urban areas a considerable section is able to study. यहाँ पर क्या होता है? प्रॉपर स्टडी बच्चों को कराया जाता है, पूरा प्रॉपर कोर्स करवाया जाता है from the various institutions, education institutions basically. And urban people have a variety of employment opportunities. मतलब they don't just grab any opportunity which they are getting. They first of all go through the employment opportunities कि क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या मैं इस जॉब को कर पाऊंगा, क्या मैं इंटरेस्टेड हूं इस चीज में. तो दैट जॉब शुड सूट देयर क्वालिफिकेशन एट द सेम टाइम. So they are having variety of employment opportunities, and इस तरीके की चीजें रूरल एरिया में नहीं होती हैं. तो रूरल एरिया में इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं. That is why, because of their economic condition, more and more people are employed in economic activities, और वो वहां पर ऑप्शंस नहीं होते हैं, किसी भी तरीके का काम उनको मिल जाए, they are ready to do that work. But in case of urban area, they look for appropriate job to suit their qualifications and skill, and then they join. And just because of that particular thing, जो urban areas हैं उनमें participation rate जो है, worker participation rate जो है वो थोड़ा कम होता है, जबकि rural area में ये worker participation rate थोड़ा ज्यादा होता है.
आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, एंड डेफिनेटली जल्दी से जल्दी मैं आपका जो है डाउट रीड करूंगा और आपका डाउट सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। बाकी और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए मैक्रो के या फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, यहाँ पर आप कार्ड सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, लाइक किए बिना मत जाइए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं आप लिंक में चेक कर सकते हैं। बाकी अगर चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इन पर ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आर given in the description. So this is all about your today's video. Thank you so much all of you and keep watching Manoj Jangir classes.